Okay student, now we discuss about the next topic, that is reproduction in human beings. Reproduction, you know very well the term, it's to produce their young ones. Before we just discuss about the process of reproduction in human beings, we clarify the changes occur in the human body during the age of 11 to 18 year. Okay, these terms to be discussed in your 8th class, what the changes occur in our body. Okay, for example, in boy, whenever they come the first step in the adolescent period, the changes occur in his body are increase in height. Okay, increase in height. Next, change in voice box. Okay, you have to see the various changes in the voice box. The boy's voice is to heavy, horse like voice is to be. Thirdly, uh, growth of hairs on the body. Okay, and growth in the reproductive organs. Okay, and in case also in girls, there is changes in the body shape, increase in breast size, increase in the height, changes in the voice box. Okay, and growth of the hairs on the internal private parts. Okay, so now we discuss firstly, these are in this paragraph you just studied about the various changes that occur in the body. It's a boy or it's a girl. So these changes, whenever there is a term, it's a juvenile phase. Juvenile phase is what? Whenever the body is to be in a growing period, and it's called a vegetative phase, means there is no any reproduction process takes place. Okay, and whenever we step out in the age of 11, so it's to be start of reproductive phase, means there is formation of gametes in boys, formation of male gamete, and in girls there is formation of female gamete. Okay, so these gametes, you know very well, when the gametes are fused together to form zygote, and this process is called fertilization. What before fertilization, there is a transfer of the male gamete to the female body. Okay, and thereafter fertilization takes place. So first of all, we discuss about the male reproductive system. Okay, the male reproductive system consists of a portion which produces the germ cells and other portion that delivers the germ cell to the site of fertilization. The formation of germ cell. Germ cell is what? Germ cell is nothing. What? It's a sperm. Okay, so takes place in the
testis. Okay, so you have seen here this portion is to be called the testis, which is outside the body, and outside the body, and this is called scrotum, having a testis inside it. Okay, they are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a low temperature than the normal body temperature. You know very well, our body temperature is 37 degrees centigrade. What if the testis inside the body, sperm are inactive? Okay, so that's why this scrotum part is outside the body, having a testis, having a sperm formation. Its a temperature become lower than the body temperature. Okay, so in the testis, in the secretion of the hormone that is टेस्टोस्टेरोन, व्हाट वी कॉल टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन को, स्पर्म मोटिलिटी को अच्छा करता है. स्पर्म जो है वो रिलीज होंगे, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन क्या है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, तो मेल हार्मोन कौन सा हुआ? टेस्टोस्टेरोन. ओके, तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है कि जो रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. इफ़ अगर जो है किसी मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी स्पर्म फॉर्मेशन अकर नहीं होगी. तो मतलब वो जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा? स्टराइल हो जाएगा. स्टरिलिटी कॉज होती है, मीन्स वो मेल गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है. जब मेल गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो इन फ्यूचर जो है वो फादर नहीं बन पाएगा. ओके, वो कमी रह जाती है. एंड द चेंजेस before we move to adult, before that the changes occur in the body and adolescent period. The changes occur in the boy. The hormone which is released inside the boy, that hormone is टेस्टोस्टेरोन. मतलब टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो भी चेंजेस बॉयज़ की बॉडी में देखने को मिलते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से देखने को मिलते हैं. अब स्पर्म बन के और उनको डिलीवर करना है तो वो कैसे मूव करेंगे? डिलीवर करने के लिए वो वासा डिफरेंस से जाते हैं विच यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर. और कहाँ वो अटैच कर जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के साथ. और द यूरेथ्रा फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन. तो स्पर्म और यूरिन के लिए कौन कॉमन पैसेज बनाता है? ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है. स्पर्म और urethra that form a common passage for the both sperm and urine. Okay, along the path of the vasa difference, glands like the prostate and the seminal vesicle add their secretions so that the sperm are now in a fluid which makes the transport easier, and this fluid also provide nutrition. The sperm are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move towards the female, germ cell. Okay, so how that moves I just explain in the structure. This test is responsible for the formation of sperm. These sperm formed and moves by this vasa differences. ओके, वासा डिफरेंसेस होते हैं यूट्रस. यूट्रस कॉमन पैसेज, ये सेमिनल वेसिकल है. ठीक है, ये आपका ब्लैडर है. तो ब्लैडर से होते हुए, ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है. प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ ये बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड है. ठीक है, ये सारे ग्लैंड अपना सिक्रीशन क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं स्पर्म में. और यहाँ पे एक कॉमन पैसेज यहाँ पे बन जाता है. यूरेथ्रा मेक इट द कॉमन पैसेज हेयर. ये चीज़ आपको याद रखनी है. और यहाँ से जो स्पर्म हैविंग जो सिक्रेशन है फ्लूइड का, अभी इसको कलेक्टिव हम सीमन बोल रहे हैं, तो सीमन प्लस जो यूरिन पैसेज है वो सेम जो है इस पैने से होता हुआ जो है वो इजेक्टिंग आउट. ओके, नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस करेगा, या हम उसको क्या बोलेंगे? एग. और वो कहाँ पे बनते हैं? ओवरी में. जैसे पिक्चर्स में आपको देखने को मिल रहा है,
हमारी जो फीमेल बॉडी होती है इसमें कितनी ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं। टेस्टिस भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ओवरीज भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। एक को लेफ्ट ओवरी है, दूसरी आपके पास क्या है, राइट ओवरी है, ठीक है। साथ में ये जो पोर्शन है आपके पास, ये आपका यूट्रस है, ठीक है। ये फिलोपियन ट्यूब है, ये फिलोपियन ट्यूब है, ठीक है। 2 ही फिलोपियन ट्यूब हैं आपके पास, ठीक है। ये इसको यूट्रस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये कॉमन पेरिस सर्विक्स है और वेजेना और यूट्रस के बीच को जो यहाँ पे कैनाल मतलब जो लिंक प्रोवाइड करता है दोनों को, वो सर्विक्स है। आगे पोर्शन क्या है आपके पास, वेजेना है, ठीक है। तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वी आर मूविंग, यहाँ पे जो है ये बात कर रहा है, यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ जो सिस्टम है आपके पास, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से क्या होगा, मैं यहाँ से आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन में लेंगे। यहाँ जब एग बनते हैं, ठीक है, एग कैसे बनते हैं, यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल जो है वो एग कैरी करता है, ठीक है। जब आपका ग्राफिन फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाता है, यहाँ पे जो है हार्मोन रिलीज होते हैं, नाम होते हैं एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन। कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन। अब ये दोनों जो आपके पास एस्ट्रोजन है, जब ग्राफिन फॉलिकल हैविंग एग जो बन रहा है, मैच्योर एग हो रहा है, उस दौरान सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है। अब क्या किया उसने, एग को फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर दिया। जब एग को रिलीज कर दिया फैलोपियन ट्यूब में, तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन हो गई तो यहाँ पे जो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल होता है, कौन से वाला, एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एक तरह से हम इसको बोलते हैं येलो बॉडी। क्या बोलते हैं, येलो बॉडी, क्योंकि यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, ये हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम होता है प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन। और ये तब तक रिलीज करता रहेगा जब तक कि नेक्स्ट जो हमारा बॉडी का साइकिल, मतलब अगर एग जो है जब तक फर्टिलाइज नहीं हो जाता है तब तक जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो जाता है। अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है एग, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंटिन्यूसली क्या करेगा, रिलीज करता रहेगा। अगर नहीं करता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना वहाँ से बंद कर देता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, जो भी एंडोमेट्रियल वॉल रहती है यूट्रस की, उसको थिकन करता जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये रिलीज करना बंद कर देगा तो एंडोमेट्रियल वॉल क्या होगी, ये थिक नहीं होगी। जब थिक नहीं होगी तो आपको पता है एज ए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है यहाँ से स्टार्ट होएगा। जो आपकी इंटरनल जो यूट्राइन वॉल होती है, एंडोमेट्रियल वॉल बोलते हैं उसको, वो वहाँ से ब्रेक डाउन कर जाते हैं और एज ए मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से हर महीने जो है क्या होता है, ये साइकिल रिपीट होता है। एक टाइम में आपको याद रखना है कि 1 मंथ में, एक मंथ में एक एग जो है एक ओवरी से आता है, दूसरे मंथ में दूसरी ओवरी से आता है, और इस तरह से ये साइकिल रिपीट होता है। किसी को अगर एग को स्पर्म नहीं मिलेगा तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तो वहाँ पे रप्चरिंग ऑफ जो है मेंस्ट्रुएशन जो ये स्टार्ट होता है, इस तरह से शुरू हो जाएगा। अगर मिल जाता है तो प्रेगनेंसी का करती है, और इस तरह से जो एंडोमेट्रियम में बार जो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और जो है फर्दर इम्प्लांटेशन और जो ग्रोइंग फेटस है उसके लिए जो है वहाँ से अटैचमेंट जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे तो ये सब चीज़ें जो है यहीं पे दे रखी हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जब एक लड़की पैदा होती है तो ओवरी जो है ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ, कितने, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग, ठीक है। ऑन रीचिंग पुबर्टी, जब वो पुबर्टी फेज में मीन्स रिप्रोडक्टिव फेज में मूव करती है, सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग, ये मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। 1
एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी, एक ओवरी से हर महीने एक एग रिलीज होता है. द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब. द टू ओविडक्ट until into the elastic bag-like structures known as the uterus. कहाँ पे लिंक करते हैं? यूट्रस के साथ लिंक करते हैं. ठीक है. द यूट्रस ओपन इनटू विजना थ्रू the cervix. Okay, the sperm enter through a vaginal passage during sexual intercourse. They travel towards and reach the oviduct when they may encounter the egg. Okay, the fertilized egg is the zygote now gets implanted into the lining of the uterus and start dividing. And we have seen in earlier section that the mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nutrient the growing embryo. The lining thickened and richly supplied with the blood to nourish the growing embryo. और implantation is what? यहाँ पे जो है प्लेसेंटा फॉर्म होता है. जो भी मदर कुछ खाती है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है बच्चे की बॉडी में जाता है. तो यहाँ पे जो है इनटेक, जो भी कुछ खाना है या वेस्ट है उसको वहाँ से निकालना है या रेस्पायर करना है. ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किसके थ्रू हो रहा है? प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है. प्लेसेंटा क्या करता है? कुछ हार्मोन रिलीज करेगा. यूरिन में जो मतलब यहाँ पे HCG करके हार्मोन रिलीज होते हैं और वैरायटी ऑफ हार्मोन जो वो रिलीज करता है. जैसे लैक्टोजन हार्मोन होता है आपके पास, लैक्टोजन हार्मोन होता है, वो कुछ ना कुछ हद तक जो है वो प्लेसेंटा भी क्या करता है? रिलीज करता है. प्लेसेंटा जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ही हमेशा जो है वो प्रोड्यूस होता है, मीन्स बनता है. तो इसको ये एक हार्मोन रिलीज कर रहा है. तो ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन को रिलीज करते हैं. तो प्लेसेंटा एक टेम्पररी ग्लैंड की तरह होता है क्योंकि हमेशा के लिए हमारी बॉडी में नहीं होता है. व्हेनेवर द प्रेगनेंसी अगर उस दौरान ही ये रिलीज बनता है. तो इसलिए हम इसको टेम्पररी ग्लैंड भी कहते हैं. ये आपके लिए एडिशनल नॉलेज के लिए, क्योंकि जब हम जो है ग्लैंड्स डिस्कशन में लेंगे तो उस दौरान जो है ये सब बातें वहाँ पे डिस्कस होंगी. ठीक है. तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट दीज. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The embryo gets nutritions from the mother's blood with the help of special tissue called placenta, and this is a disc which is abandoned in the uterine wall. It contains villi on the embryo sides of the tissue. On the mother side are blood spaces which surrounds the villi. This provides a large surface area for the glucose and oxygen to pass from mother to the embryo. The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. The development of the child inside the mother's body take approximately 9 months. The child is born as a result of rhythmic contraction of muscles in the uterus. Okay. So अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है कि व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज. जब जो है अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा? इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइजेशन, ये जो है फ्लोपियन ट्यूब में एक पर्टिकुलर साइट होती है, वहाँ पे एक दिन के लिए रहता है, सर्वाइव करता है, वेट करता है, स्पर्म इज कमिंग एंड फर्टिलाइज इट. व्हाट व्हेन no sperm enter inside the body, since the ovary releases one egg every month, the uterus also prepare itself every month. ठीक है, अपने आप को हमेशा एक महीने के तैयार करता है to receive a fertilized egg. Thus its lining become thick and spongy. This would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place. Now however, this lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina on the as a blood and mucus. This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation cycle. It usually lasts for about 2 to 8 days. Okay, it's not be discussed in NCERT in very elaborately. So I just explain here over. Menstrual cycle, it's come out for 28 days. Okay, having a 3 phases.
I just given you notes, and in that you have to in a note making you have to make that notes, but just I explain here over. फर्स्टली जो है आपके पास आता है फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज का मतलब है कि जब तक जो है जो आपके पास ग्राफियन फॉलिकल है, जो आपका एग है, वो मेच्योर ना हो जाए. यहाँ पे जितने भी कुछ हार्मोन्स रहते हैं उनको एक्टिवेट करना है. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं जो फॉलिकल्स को बनाने में रोल प्ले करते हैं. ल्यूट्राइजिंग हार्मोन होते हैं वो जो है एक्टिव होते हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं. ठीक है, कि एग अच्छे से मेच्योर हो जाए. दूसरा जो है आपके पास यहाँ फेज चलता है. इस फेज से पहले यहाँ पे 14 डेज ये चलेगा आपके पास. थोड़ा सा मैं साइकिल बना दूँ आपके लिए. यहाँ पे ये इस तरह से आपके पास जो है ठीक है, काउंटिंग में 5 to 6 डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल मूव करता है. उसके बाद आपके पास जो है 1 to 6 ये आपका आया मेंस्ट्रुएशन फेज. 6 to 14 डेज पे ओव्यूलेशन अक्कर करती है. ठीक है, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? टू रिलीज एग. और ये जो फेज है यहाँ पे तैयार होता है कि एग अच्छे से मेच्योर होगा. उसके बाद मेच्योर एग जो है वो रिलीज होगा फ्लोपियन ट्यूब में. उसके बाद का जो है यहाँ पे मूव करता है यहाँ पे ल्यूटियल फेज. क्या फेज बोलते हैं? सेकेंड, ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज का मतलब है कि जब यहाँ से एग रिलीज हो गया तो एम्प्टी, अभी मैं डिस्कस कर रही थी आपको कि एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल जो है कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में. ठीक है, तो ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का ही काम होगा. ठीक है, वो क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो तब तक रिलीज करता रहता है जब तक कि एग जो है वो फर्टिलाइज ना हो जाए. अगर एग को जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देता है. क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या होगा? जो आपकी यूट्राइन वॉल होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको थिकन करता है. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है सिक्रीटरी फेज. क्या आता है? सिक्रीटरी फेज. सिक्रेटरी फेज में क्या हुआ? सिक्रेटरी फेज में आपका नथिंग एल्स, कॉर्पस ल्यूटियम का फर्दर जो है नेक्स्ट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है. उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्विकन. इट्स अ वाइट बॉडी. ठीक है, और लास्ट में आपका ये साइकिल जो एक साइकिल जो होता है, मतलब यहाँ से अगेन क्या होता है? साइकिल रिपीट हो जाता है. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा. ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज, अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप क्या समझते हैं? क्योंकि रिप्रोडक्शन तो एक जनरल प्रोसेस है, एक जो है नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने का तरीका है. बट यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, तो हमें इसकी तरफ जो है वो ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है. अगर हम लोग अवेयर होंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इसके रिगार्डिंग क्या होंगी? अवेयर होंगी. क्योंकि आप देखेंगे कि फॉर डिकेड्स, मतलब पिछले कुछ टाइम पहले अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके जो है वो ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं लोग, और उसकी वजह से उनको जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेके बहुत सारी जो है वो दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से वो अराइज करती हैं. ठीक है, तो हमें जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके जो है थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए? थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए. इससे हम जो है रिप्रोडक्शन से लेके जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ डिसीज़ कॉज होती हैं, तो उनसे हम क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है कंसेप्ट जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि कुछ जो फैमिलीज़ होती हैं, आप देखते हैं कच्ची उम्र और पक्की उम्र, थोड़ा सा वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि कच्ची उम्र है, अभी शादी नहीं करनी है. तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो एक गाइडलाइन, एक नॉर्म्स तैयार किया है कि 18 साल जो भी मैरिज के लिए एक पर्टिकुलर जो एज है वो क्या है कि 18 साल की लड़की होनी चाहिए और 21 ईयर का क्या होना चाहिए? लड़का होना चाहिए. इसमें क्या होता है कि ये जो एज है उस दौरान जो है जो ग्रोइंग बॉडी है, जो भी बच्चा है वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. उस टाइम उसकी पूरी बॉडी जो अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है. क्योंकि जब भी वो किसी यंग वंस को प्रोड्यूस करता है उसके लिए पहले से उसकी बॉडी अंदर से क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. क्योंकि जब भी कंसीविंग करना है, प्रेगनेंसी अगर होती है, तो अगर आपकी बॉडी अगर स्ट्रॉन्ग है तभी आप जो है वो प्रेगनेंसी को
सहन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ग्रोइंग चाइल्ड रहेगा, वो आपकी बॉडी से ही जो है सब कुछ टेक ओवर करेगा। तो पहले से अगर आपकी बॉडी अंदर से वीक है तो आप जो है अच्छे से जो है वो उस प्रेगनेंसी को सहन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सेहत पे इफ़ेक्ट करता है। और आपने देखा होगा कि जब तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मदर्स जो मैटरनिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा डाउन जाता था। तो उस दौरान कई बार क्या होता है कि बच्चा बर्थ कर रहा है, बच्चे का बर्थ हो रहा है, तो मदर की क्या हो जाती है, वहाँ पे डेथ हो जाती है। या कई बार क्या होता है कि अगर मदर तो बच जाती है लेकिन बच्चे की डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ इश्यूज रहते थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट नॉर्म्स ने तो ये बता दिया कि इस तरह का होता है। अब बहुत सारी जो इस तरह के जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेके कुछ ना कुछ जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स दौरान जो है कुछ डिसीज़ेज जो हैं उनका ट्रांसफ़र, अगर हम अनसेफली जो है मतलब इंटरकोर्स करते हैं तो उससे क्या हो रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ द डिसीज़ जो है वन पर्सन टू अनदर पर्सन हो रहा है। तो यहाँ अनसेफली का मतलब क्या है, अनसेफली का मतलब है कि हमने अनसेफ तरीके से जो है अगर कुछ किया है तो उससे क्या होता है कि अगर किसी एक पार्टनर में कोई डिसीज़ है तो दूसरे में भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर है। कुछ आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल STD, जो सिर्फ इसी से ही अराइज करती हैं। तो जैसे साइफिल्स होते हैं, गॉनरिया होते हैं, तो वो आपके पास जो है वो डायरेक्टली जो है दूसरे पर्सन में चढ़ाएंगे। और आगे से आगे अगर एक ही पर्सन के बहुत सारे मैनी पार्टनर्स हैं तो उनमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। और एड्स का तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल तो क्या हो सकता है, ठीक है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और इसका जो वायरस है वो इट्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। और आपको पता है कि अगर अनसेफ तरीके से इसको किया जाए तो ये भी क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उससे आपको इन चीज़ों से बचने के लिए, जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं प्लस इस तरह की जो डिसीज़ हैं, इनसे बचने के लिए हमें जो बहुत सारे इन्फेक्शन अगर किसी को हो तो इस वे से ज़्यादा फैलते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या सेफ़ तरीके से जो है वो इस तरह के इम्पैक्ट करने चाहिए वहाँ पे। तो सेक्सुअल एक्टिविटी ऑलवेज हैज़ अ पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार अनसेफ तरीके से अगर हम जो इस तरह से कर रहे हैं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी कर जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी है, फिर हम क्या कर रहे हैं, वो उसकी बॉडी वो क्या कर रहा है, वो मतलब लड़की तैयार नहीं है, उसकी बॉडी और माइंड तैयार नहीं है प्रेगनेंसी के लिए। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे वेज हैं। अगर वो नहीं चाहती कि प्रेगनेंसी नहीं हो तो आज का बहुत सारे मेथड्स जो मूव कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे आ गए हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जैसे ओरल पिल्स होती हैं या कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी को वहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है कॉन्डम्स जो हैं वो मूव करें। मैकेनिकल बैरियर होते हैं, केमिकल बैरियर्स होते हैं, कुछ सर्जिकल बैरियर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो मैकेनिकल बैरियर्स कॉन्डम्स, जैसे फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, मेल कॉन्डम्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली सीमेंट जो है वो इंसर्ट ना करे वेजाना के थ्रू जो है फ्लिपिंग ट्यूब तक ना पहुँचे, ठीक है। दूसरा जो है केमिकल मेथड्स होते हैं। केमिकल मेथड्स में जो है कुछ क्रीम्स वगैरह का यूज़, कुछ केमिकल्स का यूज़ करके हम जो है कुछ पिल्स वगैरह लेके जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। थर्डली जो सर्जिकल मेथड में आपके पास क्या होता है, ओविडक्ट को क्या करना है, हमने कट करना है, टू कट फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। ये फीमेल बॉडी में होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसके लिए पर्टिकुलर टर्म है आपके पास, ठीक है। और ट्यूबोटॉमी करके हम टर्म यूज़ करते हैं। और जो मेल बॉडी है, जब हम वासा डिफरेंसिया को काटते हैं, वासा डिफरेंसिया को जो है मेल बॉडी में हम क्या करेंगे, काट देते हैं, ठीक है। जब उसमें कट कर देंगे तो यहाँ पे बोलते हैं बेस्कटॉमी। तो इस तरह से जो है दो सर्जिकल मेथड जो है मेल और फीमेल में अप्लाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर डिवाइसेस जैसे लूप्स और कॉपर टी का यूट्रस में हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। इससे भी प्रेगनेंसी क्या होती है, नहीं होती है, मतलब। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो कॉपर टी वगैरह होता है उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर वासा डिफरेंस जो है मेल बॉडी में क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, स्पर्म ट्रांसफर विल प्रिवेंट। इफ द fallopian tube on the female blocked, the egg will not able to reach the uterus. In both cases fertilization will not takes place. तो सर्जिकल मेथड्स जो हैं मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं इससे कि जो ब्लॉक्स हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए, ठीक है। और सर्जिकल जो मेथड्स हैं उनको हम जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो
लेकिन एक हेल्दी सोसाइटी कैसे बनेगी? हेल्दी सोसाइटी बनने के लिए, जैसे अगर आप इस पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, सेल्फ रीड करना है इसको, कि जो सेक्स रेशो है, अब आप देखते हैं कि लड़की नहीं चाहिए, ठीक है, लड़का ही चाहिए, ठीक है, तो क्या करते हैं आजकल इलीगल तरीके से जो है हम अल्ट्रासाउंड से पता लगा लेते हैं, मतलब आप पैसा वगैरह देखिए, अब तो वैसे कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि नहीं चाहिए, अब लड़की हो गई है, अब लड़का ही चाहिए, अगर फिर लड़की है, अब पता चल जाता है लड़की है, तो उसको क्या करते हो आप, अवॉर्ड करवा देते हैं। तो उससे क्या होता है, सेक्स रेशो रेट में डिक्लाइन आ रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत पहले सबसे ज़्यादा जैसे हरियाणा टॉप पे था, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मेंटालिटी को बदलने की ज़रूरत है कि लड़का लड़की क्या है, बराबर है। क्योंकि आज भी अगर हम थोड़ा सा हम बोल देते हैं नहीं लड़का लड़की बराबर है, लेकिन हर कोई इस चीज़ को नहीं समझता। आज भी कहीं ना कहीं हर किसी की तरह जब लड़की पैदा होती है ना, तो कोई खुश नहीं होता है, बाहर से हर कोई खुश होता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी जो है वो मेंटेलिटी पूरी तरह से नहीं बदली। तो हमें इसे बदलने की ज़रूरत है कि लड़कियां भी, या जो लड़के काम करते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। हर एक प्रोफेशन में लड़कियां अपना दबदबा रख रही हैं, हर एक जगह पे जो है अपना स्टैंड अप कर रही हैं कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सोचते हैं ना कि जैसे कि लड़कियां जो हैं वो दूसरे पराया धन है, लड़के चले जाएंगी तो लड़के ही सहारा होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिन्होंने करना है वो चाहे लड़का हो लड़की एक बराबर ही है, वो दोनों ही, मतलब अगर उनके संस्कार बताते होंगे उनको कि नहीं ये अच्छा है बुरा है, अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, हमें कम मतलब काम करना है कुछ, मतलब तो ये कोई वो नहीं है कि लड़कों से ही हमें लेना है या कुछ, ठीक है, तो इस मेंटालिटी को बदलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो सेक्स डिटर्मिनेशन कंसेप्ट है, ये एक्चुअली में तो लीगली यूज़ होता था कि कोई अगर एबनॉर्मल केसेस बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे होते थे, लेकिन उसका इलीगली यूज़ होना शुरू किया कि लड़का है लड़की, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मतलब लोग जो है इसका गलत यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। So this is all about this chapter. Okay, you have to read this paragraph also and each and every line of this chapter to understand very clearly. If any doubt in that, you just call me. Okay, thank you.